Warm greetings. Warm greetings. We welcome all of you on behalf of Friday Waters, an initiative of the W4W Foundation. The idea of Friday Waters is to make Fridays fun-filled and yet add fruitful activities for the future generation, revolving around the subject of water. We are starting sessions on water walks and talks. The focus of water walks and talks is on bringing expeditioners who undertake journeys along the water bodies. With them, we shall understand the purpose of the journey, the approach, the challenges and opportunities of undertaking expeditions. Besides bringing interest in such water conversations, this will increase the outreach of the expeditioners in the water networks and in the society at large, because somewhere or the other, they help us understand that connecting with the water is the key to really take care of it as our source of life. For today's session of water walks, we will walk and talk with Mike Keshwar, Bageshwar Singh, Rahul Singh. We also have Shantanu Pratap Singh from Center for Global Affairs and Public Policy, CGAP. In fact, Shantanu was the one who actually came forward to initiate this session for a discussion, because he was keen. He's keen to organize a Ganga Women Expedition on plastic pollution, and probably I'm going to work with him, so I'm also excited about it, where we are going to rope in some of the scholars from W4W Foundation as well as Wiki Water Resource Council. So Shantanu and I will speak about the water endeavors, which we are going to take with girls at the end of this session. But before that, we will listen to our speakers today. So welcome to all the participants who have been supporting and encouraging us for these water conversations, because we have crossed 150 conversations so far. So our first speaker today is Colonel Manoj Keshwar, or he likes to call himself as Mike, and I know him as Mike only. He has a unique 35 years multifaceted work experience in the world, travel, adventure, expeditions, unique projects, entrepreneurship, rejuvenation of Ganga Basin. And he has also held responsibility of strategic HR and outbound leadership. He's founder and CEO, Journeys by Victorianes, which is an adventure travel company, and which focuses on transcontinental and geographic specific road expeditions. He's co-founder and trustee of Atulya Ganga Trust, which is why we have invited him here, an NGO for rejuvenation of Ganga Basin. Through this, the team has traveled more than 5,000 kilometers of walk, more than 2,800 kilometers of cyclothon, and even more than 2,000 kilometers of Yamuna cyclothon. So the team is actually a vibrant group of people participating from all walks of life. And this year, their work was even showcased in the Republic Day Parade. And in the past, he has held many such positions, and I'm going to share that in the chat box. But importantly, he held also a position as Colonel in Indian Army Engineer from 1990 to 2011, and at a role of HR at Defense Ministry, holding diplomatic assignments at United Nations, Africa, and so on and so forth. Rest of the things I'm going to put on the chat box, and you can also check his work at Atulya Ganga. So welcome, Mike. And as I know, you have requested me to play the Atulya Ganga first before you speak. So what do you suggest? Should I go ahead and play the video? Yes, please. Please go ahead with the bigger video first and the smaller later. Okay. Atulya Ganga is a military veterans initiative. Audible? So the idea was every year do one or the other activity along the Ganga and talk to the youth, people, and sensitize them about the status of Ganga River. The first project which Atulya Ganga Trust took up was the Atulya Ganga Parikrama. This used to be a tradition in Vedic times to walk along the Ganga from Gangotri or Gaumukh to Ganga Sagar and probably do a full parikrama going from the northern bank, coming back via the southern bank. So the aim of the first project of Atulya Ganga was to re-establish this walkathon along the Ganga River. Atulya Ganga Trust has got 5 principles on which the entire Ganga rejuvenation program is based. First is that of the parikrama, which will be done annually. Second is the people connect, and especially focused on the youth to take up responsibility as they are the biggest stakeholder. Third principle is that of pollution mapping. As long as the mirror is not shown to the society, it will be very difficult for Ganga to rejuvenate, and therefore pollution mapping is a key principle. The fourth principle is that of plantation.
The Ganga banks and its floodplains must have a large amount of tree plantation drive every year. And the final or fifth principle is to call for complete ban on single-use plastic. Well, Atulya Ganga Trust is the most spirited, dynamic and sure-footed project. It is completely focused on Ganga rejuvenation. It is my sincere request that please help and support these veterans who in the evening of their lives have started walking around Ganga and are spending their time to make sure that the future generations get a clean, pristine river Ganga. This can be skipped. The next one. The next video, please. Yes. Mike, would you like to speak and then we play the next video? Because then it will be nice for people. Yeah. So Go ahead. I just want to say this on behalf of all the elders of Atulya Ganga family. Gopal Sharma ji, who is in his early 80s, he has nothing look forward to in life than to spend rest of his life trying to rejuvenate rivers of India for the future generation. Same for Colonel Hem Lohmi. Both of them are more accomplished than whatever was read for me. They are amazing mountaineers, and their devotion to the rivers of India for the future generation is exceptional. We all get very inspired from Guruji, Gopal Sharma ji and Colonel Hem Lohmi. Their energies are amazing. In mid 70s and early 80s, if somebody is pushing the envelope to revive the rivers, well, they have nothing to carry from this mission. So me in early 50s, I'm very inspired. I'm pretty young that way. What you saw was the first big, in fact, once in 2,500, 2,600 years, a yatra like that has ever been taken for Ma Ganga. And it requires it. Ma Ganga brought up all our civilization. Now we have to return back by saving Ma Ganga from extinction. And I can tell you, we will see, how badly we have treated our rivers. And our apologies, our senior people's apologies, go out to the new generation that we have created extremely mess of all the rivers which were handed over to us by our forefathers in a pristine manner. And in last 100 years, we've done what nobody could do for thousands of years. We've almost killed the rivers. So may I request the second video we played? Yes, sure. Okay, so we have amongst the people here, Kaleshwar Mishra ji from Green India Foundation. They are our partner for planting these trees, and symbolically, on the schools, colleges, and on the way, wherever we go, we always plant trees, just to set an example. So Kaleshwar Mishra ji is part of the audience here. We have Commander Chaudhary, who's here, Mohit Verma from IIT Ropar. These are the people who are responsible for pollution mapping under the leadership of General Vinod Bhatt. I don't see him here, but he must be, I'm sure, coming in soon. We have Colonel Prem Prakash, who's part of the Atulya Ganga Jamuna Cyclothon. So a whole lot of people are here. Thank you, sir, for all attending. I'm going to take all through about 10 minutes of a presentation, just to give everybody an idea as to how comprehensive and how 360-degree rounded this organization of Atulya Ganga is. And our job is not finished till we make a positive impact on the river per se. Everything else is baatcheet, effort. But end result is that rivers must be flowing freely, aviral honi chahiye or nirmal honi chahiye. They should be clean and they should flow freely as God created them. Only then we can have the true benefit to the future generations. So I am going to take you through a little presentation. I'll share the screen. Please go ahead and share the screen, because I have both those videos as same videos from you, so they are not different. Right. Just a moment. Let me just get the presentation right. So I hope everybody is able to see this. Yes. Yeah. Okay. So this Yamuna Cyclothon 2002-3 is the project this year. Oh, this has already gone a lot in the front.
So this is 11 years commitment minimum and maybe more, and founded by the veterans, but supported by the entire youth of India and whole lot of people who are supporting us. These are the founders. I am youngest of them, and now we have stopped calling ourselves founders. We are all enablers, and everybody who's joined the organization is actually a founder. From our side, we run this organization from our own pension. We started with our own pension. Well, support did come from here and there, but we really don't look after those support because we are self-motivated and self-funded to carry out our job. Nothing is going to stop us from pushing this throughout our lives in future. This is our aim. We want to monitor river Ganga pollution and its levels for next 10 years and create an exemplary model for the other rivers. So अगर आईना नहीं दिखाया जाएगा तो कभी पता नहीं लगेगा कि कितनी गंदी है और ये गंदी हो रही है या साफ हो रही है. Unless and until the data is presented to the population, they are just sleeping and they will sleep themselves to dead rivers. हमारा मिशन है कि भी सबका साथ हो और नदियां साफ हो. That means all the resources of the government, NGOs, volunteer organization, people living on the bank of the rivers, the animals which are going away and the animals which are there, all of us together have to bring back our rivers. And our vision largely is based on the Ganga and Yamuna example, which we will set. Probably future generations and around the world, there will be motivation for people to clean up their rivers. So it's a clear-cut 11 years plan, which has got every year there will be some parikrama, कभी पानी से, कभी साइक्लोन से, कभी पैदल, कभी शायद स्केटिंग करें, कभी कयाकिंग करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते हुए नदियों के पास हम हर साल जाएंगे. हर साल वाटर सैंपल टेस्टिंग होगी, हर साल डेटा कलेक्शन होगा और एनालिटिक्स होंगी, हर साल प्लांटेशन होगी, हर साल गंगा की जो बाउंड्री है उसको डिमार्केट किया जाए, उस पर एनक्रोचमेंट ना हो, इसकी मांग होगी. और हर साल अवेयरनेस प्रोग्राम, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, सभी स्टेक होल्डर्स को हम अपने जो हमारी नॉलेज हम गेन करते हैं उसको शेयर किया जाएगा. एक गंगा हेल्थ डैशबोर्ड हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि जब तक जैसे PM 2.5 और PM 10 अब दिखने लग गया है तो गवर्नमेंट और कोर्ट्स और लॉ सभी अकाउंटेबल हो गए हैं कि भाई रोज के रोज ये क्यों खराब हो रहा है या क्यों ठीक हो रहा है. आप दिल्ली में देखिए, जिस दिन PM 2.5 400 होता है उसी दिन हाई कोर्ट जवाबदारी मांगती है गवर्नमेंट से. ये नदियों में नहीं हो रहा है. तो इसी को लाने के लिए ये हमारा प्रोग्राम है गंगा हेल्थ डैशबोर्ड का. जनरल विनोद भट्ट, ही इज annually mapping the pollution, and IIT Roper and his team is now working towards developing an app which will show the mirror of our water bodies in a real time. We presented this paper to the United Nations this year. Advise and maintain cleanliness of ghats, riverfront surroundings. Of course, जब हम चलेंगे जाएंगे तो हम advise करेंगे. निषाद और fisherman community अगर नदी पे बनी रहे, that will be another indicator that our rivers are in good health. As of today, they are all running away and finding other jobs. और स्कूलों में 6ठी 7वीं में हम चाहते हैं कि एक चैप्टर या एक कॉमिक तरह की एक छोटी बुक इंट्रोड्यूस हो, जिसकी अभय मिश्रा जी, who's a famous writer on Ganga, he is working on it. और ये एक सिलेबस हम, जिसका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बट एक सिलेबस, एक किताब, एक छोटी सी बुकलेट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं 6ठी और 7वीं क्लास में, ताकि ये नदियों के बारे में एम्पैथी डेवलप हो शुरू से ही फ्यूचर जनरेशन. तो ये परिक्रमा थी 2020-21 की. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है. ये प्लांटेशन ड्राइव थी, बहुत बढ़िया थी. लोगों ने इनको पेड़ों को बचा के, मेरे हिसाब से इस प्लांटेशन का सर्वाइविलिटी रेट 95% से ऊपर है. कालेश्वर मिश्रा जी यहाँ पे हैं, मैं उनके बिहाफ पे ये गारंटी कर सकता हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ये प्लांट का प्रोटेक्शन बनाया हुआ है, इस तरह से बच्चों ने सब प्रोटेक्शन बनाया था, उसको जियो टैग किया था, उसकी फोटो खींची थी, और अब टाइम टू टाइम वो फोटो भेजते हैं कि कितना बड़ा उनका पेड़ हो गया. लॉट ऑफ कवरेज, मेरे हिसाब से कोई 10 मिलियन रीच थी हमारे इस कैंपेन की. और ये कुछ फोटोएं हैं, हम लोगों ने कुछ घाट भी साफ किए. और तो घाट साफ करने से कभी गंगा साफ नहीं होती है, बट फिर भी घाट भी साफ किए और वाटर पोल्यूशन मैपिंग आप देख रहे हैं चल रही है. उसके अगले साल फिर हमने साइक्लोथॉन करी, 2800 किलोमीटर की थी, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक. अब हम आए हैं यमुना पे, बिकॉज यमुना देश की कैपिटल के सामने ही मर चुकी है. इनफैक्ट दिल्ली के रिकॉर्ड्स में यमुना
by technically is a dead river in Delhi. एंड ये शर्म की बात है कि भारत की मतलब विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में कैपिटल के सामने जहां की लॉ बनाए जाते हैं, रूल बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सब इधर है, पावर सेंटर है और नदी मरी हुई है. सो ये बहुत शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए. और मुझे ऐसा लगता है कि यमुना और गंगा का अगर उद्धार होगा तो सभी नदियों का, सभी वाटर बॉडीज का साथ के साथ उसका उद्धार होगा. सो फर्स्ट एवर साइक्लोथॉन थ्रू आउट यमुना, हम लोग यमुनोत्री से लेके और आगरा तक की एक साइक्लोथॉन कर रहे हैं. अगेन ये 5 P's का जो प्रिंसिपल वीडियो में बताया था, 10 दिन की ये परिक्रमा है. पीपल अवेयरनेस कैंपेन्स होंगी, पोल्यूशन की मैपिंग होगी. इसमें स्पेसिफिकली इस साल से हम प्लास्टिक की भी मैपिंग कर रहे हैं कि कितना प्लास्टिक का लेवल है, माइक्रो प्लास्टिक वगैरह का. प्लांटेशन की ड्राइव चलेगी और नो सिंगल यूज प्लास्टिक, बल्कि जो टी शर्ट हम पहनते हैं वो रिसाइकल प्लास्टिक से है. और जो टी शर्ट हमने पहनी है, अगर हमने वो नहीं पहनी होती तो वो प्लास्टिक जाके नदियों के थ्रू समुद्र में किसी ना किसी मछली के पेट में या जीव जंतु के पेट में चला जाता. सो ये रिसाइकल करके प्लास्टिक को अपने ही इस्तेमाल में रखना और इसको नदियों में ना जाने देना, ये भी एक मैसेज है. आर टी शर्ट्स आर मेड ऑफ दैट. ये एक प्लान है, ये हम बाद में शेयर कर लेंगे. ये हमारी बहुत फार रीचिंग टीम है, मेजर जनरल भट्ट इसको हेड करते हैं और साल दर साल दे टेक आउट teams and expeditions to map the pollution of Ganga, and from this year onwards Yamuna also. Dr. Kailash Tiwari हैं Delhi Technical University से, रसिक रविंद्रा जी हैं, very famous name in establishing the North and South Pole station, research stations. He is an expert on glaciers and ocean expert. Dr. Vijay Loganathan हैं IIT रोपड़ से, जेल पिल्ले हैं जियो मैपिंग के एक्सपर्ट हैं GIS के, और मोहित वर्मा हैं, he is IIT रोपड़. He is one of the key person to develop this app and pollution mapping. ये हम 2021 का डेटा है जो हम लोगों ने एक वाटर क्वालिटी इंडेक्स वर्कआउट किया था, एंड वी आर हैप्पी टू collaborate with anybody who wants to understand this whole thing. I'm not going into technical details of it. जो अगर technical question कोई है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम यहाँ है pollution mapping की. तो class 1, 2, 3, 4, 5 means most polluted and 1 being excellent drinkable water. So this we map throughout the this thing. So if you see bottom left of this slide, you will see that heavily polluted areas are 10 locations and poor quality is 31. तो अगर ये 41 locations पे भी हम लोग improvement कर दें तो गंगा की बहुत बड़ा भला हो जाएगा. So this is the summary of that. Because of the shortage of time, I'm not going through that. The ghats are very, very poorly maintained. और जितने भी घाट नमामि गंगे ने बनाए हैं, अच्छे बनाए हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस जीरो है. उन्हीं का बाथरूम्स का जो पानी है वो ओवरफ्लो होके और नदी में जा रहा है. So that's the status. We do work and we don't follow it up. We tagged 573 nalas which flow into Ganga. 56 cremation grounds, 19 ghats, 26 encroachment areas, and 7 places with open defecation. Of course, there was a lot of it, but open defecation continues to be there on the Ganga. Poverty, unemployment is there in fishermen community, and they are leaving the river because river Nobor is able to support them. और भी बहुत कुछ इसमें था, कभी डिटेल में. ये एक ऐप जो मोबाइल ऐप डेवलप करने वाले हैं, इसका एक आपको सैंपल मैं बता रहा हूँ. IIT रोपड़ के सौजन्य से ये हमारे को मदद मिल रही है और इसको हम डेवलप कर रहे हैं. This is our database, geotag database है हमारे पास, sample collected throughout. 2 साल का सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया है अभी. कंपेरेटिव डेटा अभी होगा. This was published in an international journal and very highly respected journal. And thereafter we also presented this to UN conference, geospatial conference में हैदराबाद में जो हुई थी, which was inaugurated by Prime Minister Modi. We had a chance to present our findings there. Yeah, so we don't want to count on our achievements because achievement तभी होगी जब गंगा और यमुना पे पॉजिटिव असर पड़ेगा उसके पानी पे, इन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड क्लीननेस ऑफ वाटर. अविरलता और निर्मलता, ये दोनों ही चीजें जब नदियों की आने लगेंगी तभी अचीवमेंट माना जाएगा. बाकी तो हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली बढ़ा रहे हैं और किसी के मोहताज नहीं है इसको बढ़ाने में. ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है. मैं चाहता हूं आप सब लोग यमुना साइक्लोथॉन में जुड़ें. यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है. अगर हमारा छोटा वीडियो तैयार है मानसी जी तो उसको प्ले कीजिए, एंड देन वी कैन डू क्वेश्चन आंसर्स.
आपके ना दोनों वीडियो जो मेरे पास है वो सेम है माइक, तो मुझे probably you will have to reshare the link of the video, but मैं thank you so much. हाँ, ठीक जी ठीक है, तो मैं उसको प्ले कर दूंगी. And if there are any questions for Mike right now, we can take it up. Otherwise, we listen to our two other speakers. And thanks for enlightening. Important बात ये है, आपकी बातों से जो पता चलता है कि एक्सपेडिशन खाली घूमने जाने का नाम नहीं है. Expedition has a purpose, has a philosophy, and has a task to be taken upfront before you even end up in doing an expedition. तो इसी के साथ में अपने दूसरे स्पीकर्स को अब इनवाइट करूंगी, जिन्होंने गंगा और यमुना तो नहीं, उन्होंने सिंध नदी का एक्सपेडिशन किया है, और वो हमारे काफी डियर फ्रेंड्स की फ्रेंड्स हैं. तो मैं आमंत्रित करती हूँ बागेश्वर सिंह जी और राहुल सिंह जी को. पहले मैं उनका बायो एक हल्का सा एक जल्दी से पढ़ देती हूँ. तो बागेश्वर सिंह जी इज currently working with Pahal, a youth organization based in Jalandhar, Punjab, working for holistic social development and as an independent researcher of wetland ecology and plant taxonomy. How interesting that can be. So he's completed his master's in forestry from Forest Research Institute, Dehradun, and led the project on ecological assessment of Kanjli wetland funded by the Rufford Foundation, UK. The field of moving upstream fellowship of Veditam India Foundation, and because of which we have actually invited him here, and he's walked the river Sindh in Madhya Pradesh, and with co-fellow Pooja Chand. He is a casual announcer with All India Radio Jalandhar. So welcome Bageshwar. मैं जल्दी से राहुल सिंह जी का भी इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, फिर हम आप लोग से बात सुनेंगे. Rahul Singh is an independent journalist based in Jharkhand, and he mainly writes on environmental issues. He's been focusing on understanding river ecosystems and the coal economy and its impact for the past few years. Difficult life, Rahul, if you are understanding coal economy. He has almost devoted himself to elaborately studying energy transitions and river ecosystems. He holds a master's degree in journalism from Banaras Hindu University. He has a reasonably long association with Jharkhand-based prominent Hindi daily Prabhat Khabar. And prior to that, he also had a tryst with political journalism during his stint with another Hindi daily Desh Bandhu in Delhi. So Rahul has also walked through Veditam India Foundation on the River Sindh, and with Aishini Goswami. So both of these people are recipient of the fellowship from Veditam, where I know Siddharth as a good friend, and that's why we could get hold of Bageshwar and Rahul. So आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, एक तो एक्सपेडिशन पूरा करने के लिए, बट इम्पोर्टेंटली जो हमने आपको इनवाइट किया है वो ये समझने के लिए कि एक यूथ जो अपने करियर के लिए इतना फोकस रहता है, या जिसको एक्चुअली जीवन में पर्पस की एक रिक्वायरमेंट रहती है, जब तक वो कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करना, उनको भी क्या इंसेंटिव है एक्सपेडिशन करने का, आपको क्या इंसेंटिव था एक्सपेडिशन करने का, और आपने कैसे डिसाइड किया ये एक्सपेडिशन करेंगे, और जब किया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्या थे, और करने के बाद आप इसमें से प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या देखते हैं, जो यूथ को समझ में आए कि उनको एक्सपेडिशन और क्या क्या तैयारी करना चाहिए इंपॉर्टेंटली उनको. तो थैंक यू बागेश्वर. हम पहले आपको सुनेंगे और उसके बाद राहुल को सुनेंगे. जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप शेयर कर रहे हो? जी, मैं शेयर करती हूँ. ठीक है. तो हमने है ना, मूविंग अपस्ट्रीम वॉक था सिंध नदी के साथ, वेदितम इंडिया फाउंडेशन के थ्रू सपोर्टेड वॉक था वो. इसमें हमने मध्य प्रदेश में नरवर एक टाउन है वहां से शुरू किया था, और वहां से लेके बदरवास तक लगभग 200 किलोमीटर हम नदी के साथ साथ पैदल चले थे. तो शुरू में बात हुई थी जब जाने की हम तैयारी कर रहे थे कि क्या क्या है, क्योंकि मिनिमम लगेज लेके जाना है, हम बहुत कम सामान लेके जाना इस तरह से. तो एक मनोज मिश्रा सर हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि वॉक के बाद आपका एक पूरी तरह जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा. तो हम भी सोच रहे थे कि 10 दिन के बीच में क्या हो सकता है, लेकिन सच में वो 10 दिन में काफी कुछ तब्दीली आई, काफी चेंजेस आई. हम रिसर्चर हैं, मैं और पूजा, हम 2 लोग गए थे, दोनों वो वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं, और मेरा ज्यादा फोकस में एज ए प्लांट टेक्सोनोमिस्ट हूँ. तो हम देख रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नदी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ को डॉक्यूमेंट करेंगे, देखेंगे, और स्पेसिफिकली मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है कि
किस तरह प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ के इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ होती है। तो उस सब देखने को ऑब्जर्व करने का हमारा इंटरेस्ट था, तो उस इंटरेस्ट से हम चले थे। और अब फोटो लगाना पहली। या आप बोलोगे तब मैं मूव करूंगी, ठीक है? जी। जी। तो ये सबसे पहली एक पिक्चर है, पहली मुलाकात हुई थी सिंध नदी से कि जस्ट व्हेन वी सॉ द रिवर, द बस स्टॉप्ड ऑन द ब्रिज and then we saw people worshipping the river. Like that's how we saw the river for the first time. And it was very strange for us that कोई भी नदी को क्रॉस नहीं करता था बिना उसको वहां पे रुके, बिना वर्शिप किए, या कोई लोग फूल चढ़ाएंगे जहाँ नारियल तोड़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग था। तो इसके बाद आगे करिए। तो हमारी पूरी जर्नी में हमने दो बड़े डैम दो क्रॉस किए। एक मोहिनी सागर डैम था, उसके बाद अटल सागर डैम था। मोहिनी सागर डैम एक रिजर्वायर था, इरिगेशन के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया, और अटल सागर डैम दोनों इरिगेशन पर्पस के लिए, और उसके साथ साथ उसका एक एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज था अटल सागर डैम का। तो इसमें हम देखें तो ये डैम के बिल्कुल डाउनस्ट्रीम की फोटो है। पानी बहुत कम है। और नेक्स्ट फोटो देखिए आप, तो वहां पे ये डैम का व्यू है। तो इतना इतना बड़ा कंट्रास्ट है, जस्ट up downstream of dam and the upstream where the water is stopped. It's a very big dam, and we walked along the reservoir for around 40 kilometers. उसके बाद जाके एक्चुअली हम नदी सिंध नदी को देखा। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स थी यहाँ पे। नेक्स्ट फोटो करना जी। ये ट्राइबल हाउस होल्ड है वहां पे। दिस इज अ सहरिया ट्राइब, and there were some of the very interesting findings we observed during our work. One of them was the displacement of people when the dam was constructed. It's a very recent construction, around 99 2000 when the construction started, and the complete dam was built in 2008. So during those years, 12 or 13 villages were displaced and they have to be relocated somewhere else. तो जो लोग नदी के बिल्कुल नजदीक रहते थे, उनको वहां से उखाड़ के कहीं और बसाया गया। अब सरकार की तरफ से बसा दिया गया उनको, लेकिन एक्चुअली व्हेन वी सॉ द कंडीशन, it was really shocking that even after 2 decades of their displacement, they are still not able to completely live life independently. They are still working as manual laborers or working as daily wages. क्योंकि मेजर इशू था पानी का कि पहले नदी के पास हम किसी एक गांव में रुके तो उन्होंने बताया कि पहले हमारे घर के पास में गंगा मैया बहती थी, और अभी हमारे घर के अंदर गंगा मैया विराजमान है। तो वो काफी बार वो याद आती है उनकी स्टेटमेंट कि गंगा मैया उनके घर के अंदर विराजमान है। वो अभी इतनी रिस्पेक्टफुली देखते हैं नदी को, लेकिन जिस तरह से नदी को हम लोगों ने एज अ डेवलपमेंट के तौर पे रोक दिया गया है, और इतने बड़े गांव डिस्प्लेस हुए हैं, और यहाँ तक कि जो गांव डिस्प्लेस हुए हैं उनमें से एक गांव में तो बिजली का कनेक्शन नहीं था। अभी भी वहां तक बिजली नहीं पहुंची हुई, बिना बिजली के वहां पे सोलर पैनल्स हैं कुछ एक घरों में, उसी से गुजारा कर रहे हैं। तो बिजली बनाने के लिए डैम बना था, लेकिन जो गांव डिस्प्लेस हुए थे बिजली बनाने के लिए, उन गांव तक अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। तो पहले बिजली होती थी। काफी इस तरह के मतलब शॉकिंग और हैरानी वाले रिविलेशंस थे ड्यूरिंग द वॉक, जो लाइक एज अ रिसर्चर हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी कुछ लाइक विल ऑब्जर्व दीज थिंग्स ड्यूरिंग आवर वॉक, व्हिच वर वेरी शॉकिंग। नेक्स्ट फोटो करना। कैन यू चेंज द पिक्चर? या ये सलैया का पेड़ है। यहाँ पे जो लोकल ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल सहरिया ट्राइब, the people are still even if you recall the news a few months back, जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में चीता रीइंट्रोडक्शन हुआ है, तो वहां पे भी काफी सारे सहरिया ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया गया है, and most probably those displacement would be similar to how the people were displaced when the dam was constructed. And this is the main livelihood of the people. They collect the gum or NTFP, non-timber forest product, from the forest. This you see the cut marks on this the tree in front of you. It's Boswellia serrata or Indian frankincense, and they collect the gum from this tree and sell it in the market.
ये पेड़ है, इसके साथ ढाक का पेड़ है, बूटिया मोनोस्पर्मा। ऐसे कुछ पेड़ हैं, कुछ हर्ब्स हैं जिनको कलेक्ट करके दे अर्न देयर लाइवलीहुड. So this is the basic livelihood of the tribals. Next photo. Next photo. Yeah. And another Okay. thing we saw, can you change the picture? Yeah. Yes. This we saw one of the villages that resurfaced because पानी का level थोड़ा सा कम हुआ, and this is completely in ruins. In the backside there is a national highway, और यहाँ पे ये अमोला गांव था. तो इस तरह इसकी बिल्कुल नदी के दूसरी साइड पे गांव था, which the Karmai Kalam village, which does not have electricity connection at all. And also as a part of स्वच्छ भारत मिशन, हर घर में शौचालय बन चुका है, लेकिन इसमें अभी भी गैप, बहुत बड़ा गैप है शौचालय का होना और उसका प्रयोग करना. प्रयोग लगभग किसी भी गांव में नहीं था, हर गांव में शौचालय था. तो अभी भी ओपन डेफिकेशन है, हर जगह भी ओपन डेफिकेशन है, काफी बड़ा इशू है. बड़ा हमारे लिए भी ये चैलेंजेस थे. ड्यूरिंग द वॉक आई हैव ऑलवेज बीन लिव्ड इन द सिटी एंड इट वाज डिफिकल्ट, but it was also very interesting. The water quality was really good. We even once we actually started walking with the river, we used to drink the river water only. So it was a very good quality water, and which was interesting. Just next slide. We also saw very interesting sightings of wildlife. Like dam ke aage we saw so many crocodiles, almost 2 or 3 crocodiles daily we used to see freshwater. Then there were mongoose and other wildlife species, also langur very common, and multiple like 50-60 bird species in a single day near the dam. Very interesting birding habitat. Then ये एक tribal household है, Saharia tribe, and you see the bark of a tree, Cheola Arjun tree, Terminalia arjuna, वो सुखा रहे हैं. It is also a non-timber forest product which people sell. It's a medicinal bark. Some of you might have heard about the Arjun ki chhal. So this is that the people are drying and then they'll sell it in the market. It's a main part. Like for the tribals, the livelihood is dependent on the non-timber forest products. For Gujar community, it's basically dairy farming, the cattle and livestock. Then there are other, all that work is completely divided. There is a very, very strong caste hierarchy, which is another shocking point for us to see how the caste determines everything. Every single step in the village is determined by the caste. Next photo. Next photo. Yeah, this was very interesting finding. We saw it. It's so many thousands of yellow spots on the rocks. It was during the walk, and आसपास कोई भी गांव नहीं था. Like we must be around 15 kilometers away from a nearest village, and these were small paint-like spots. And in the next photo, you'll see the beehives, where we actually realize that it is these. Can you just show the next picture? So this is the beehive, so many rock bees, and this is a very interesting scientific observation. I have not the last record of this was around 20 or 30 years ago in Kolkata, but very few times this phenomena has been recorded. It is called yellow rain, where the bees come and do mass defecations on the rock, which was very interesting to observe. We saw this yellow rain over there, very, very interesting phenomena, and it is completely like unrecorded. And the other fellow, Pooja Chand, she was doing research on bees, and that's how we were able to actually identify how it's actually a bee shit. So next slide. Then there was mining. I think Rahul ji mining के बारे में और अच्छा बता पाएंगे. This about sand mining. We saw stone mining in that area. These are the stones, and this was also a bit risky area. While we were walking, लोग हमें पूछ रहे थे कि आप जासूस हो तो कहाँ से आए हो, आपके पास दूरबीन है, कैमरा है, तो आप किसकी जासूसी कर रहे हो. तो हम बता रहे थे कि हम जनरली पैदल चल रहे हैं, नदी को देखने आए हैं, सिर्फ नदी के साथ साथ हम पेड़ पौधे देख रहे हैं. लेकिन ऐसे काफी सवाल थे. ये ब्लैक बक्स का काफी बड़ा हर्ट था. इट्स
It's very also interesting example of coexistence. Black bucks among the villages. आसपास पूरे खेत हैं. ये mining area था जहाँ पे black bucks हैं. Next में देखना next picture में. You will see the houses built out of these mined stones in the next picture, which was interesting. We also stayed in one of these rooms during our walk. It's a village Kenwa. These are made from the rocks mined locally. जिनका घर था उन्होंने बोला था कि हमने अपने खेत से ही ये खदान खेत को ही खदान में कन्वर्ट कर दिया और वहां से हमने ये माइंड स्टोन है और काफी छोटे छोटे लेवल पे स्टोन माइनिंग होती है वहां काफी ज्यादा. नेक्स्ट पिक्चर. This is a crocodile. Another village. There were two wells in that village. एक well में मगरमच्छ रहता था और एक well पूरे गांव को पानी देता था. So also another interesting example of coexistence. That this is a crocodile and there are river terns sitting there near the crocodile basking, and another well which was used for both potable and other uses. The people will use water from that well only. It's just upstream of the dam. Next picture. So a group of langur, a very big group. Also during our walk, walking through the ruins of a fort, Paragarh Fort, in which. So there were so many very interesting examples we saw during the walk of wildlife coexistence, of how interdependence, how people are completely dependent on the river, and how the river shaped the lives of the people. When the whole tribal communities were displaced during the construction of the dam, and also the rehabilitation of the people, their reaction to the displacement was dependent on the caste. Like people from the higher caste, their reaction was different, and they were able to, because of their initial capital, they were able to establish themselves. They went to the city. But people who did not have enough capital, they had to stay where the government gave them the land. The land they got was वहाँ पे पानी अच्छा नहीं था. The whole village had just one hand pump. And just imagine living just on the banks of the river to having to shift in the area where there is only one hand pump in the whole village. So that was a big shock. That whole and then that area was not. It's a whole पूरा पथरीली पठार की जगह है. यहाँ पे पाइप कनेक्शन तो कहीं भी नहीं है. ऐसे काफी सारे इश्यूज थे जो हमने देखे. तो नदी ही पानी का सोर्स है और नदी से ही दूर हो जाओगे तो पानी का सोर्स बहुत दूर हो जाता है. Next picture. Yeah, this is from Survaya Ki Gadi. It's one of the archaeological site, 13th century site, where we just this is with the co-fellow Pooja Chand. And the next picture. So this is from our last day from the walking through the field. The whole landscape changed from where we began along the dam and the hills, plateaus, Bundelkhand region. It was completely dry area, not irrigated, and very few farming areas, just a few patches of mustard. And as we walked, this was the last day. We had walked around 200 kilometers in total. And here the soil was alluvial soil, and then wheat fields, very big wheat fields were there. Completely the landscape changed as we walked upstream. And यहाँ पे population काफी ज्यादा थी, काफी सारी changes observe की. This is from the last day of the walk. Yeah, thank you. Like if there are any questions, I can. Yeah, we will take questions. Let Rahul present. Thank you so much, Bageshwar. आपने हमको अपने साथ चलाया. और ये सवाल तो शायद मुझे सिद्धार्थ से कभी पूछना पड़ेगा. I know he's also around. Why he is making all his fellows walk upstream and not downstream, because I know Mike has done Gangotri to Ganga Sagar last year, which is a downstream walking. And in Siddharth's endeavors, your mentor, he is talking about moving upstream. So maybe we talk about it later, and maybe people would also like to know about it. राहुल, आपका प्रेजेंटेशन प्लीज. हमारे साथी बागेश्वर जी ने बहुत सारी बातें बताई और मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ. नदी हम भी चले थे. हमने जहाँ अपनी यात्रा खत्म की वहां से इन्होंने शुरू किया था और पूजा ने, और मैं और ईशानी मेरे साथ थी, मेरी को फेलो. तो हम लोग चले थे सेवड़ा से.
और एक मिनट में बताना चाहूंगा कि मैं पिछले साल लगभग 1 महीने तक नदी के साथ रहा, 14 दिन तो सिंध के साथ रहा, और 11-12 दिन मुझे गंगा के साथ रहने का मौका मिला। वो एक अलग प्रोजेक्ट था मुझे एक डॉल्फिन को स्टोरी करनी थी, तो लगभग 1 महीने का वक्त गुजरा। लेकिन मैं यहाँ अपनी बात को सिंध पे ही केंद्रित रखूंगा। और सिंध में जो हम मूविंग अपस्ट्रीम फेलोशिप के तहत चले थे, सेवड़ा दतिया जिले में एक जगह है, छोटी सी जगह है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में उसका काफी धार्मिक महत्व है। मैं चाहूंगा कि उसकी तस्वीर दिखाई जाए। जी, ये तस्वीर है सेवड़ा की, और हम जब पहुंचे तो इसी जगह पे, इससे थोड़े पहले बस वालों ने हमें उतार दिया, बस वहां जा नहीं सकती थी। तो ये जो अंग्रेजों के जमाने का पुल बना हुआ है, वो छोटा सा पुल दिख रहा है, वो काफी मजबूती से खड़ा है। और ये जो है हम लोगों ने जो पुल बनाया वो बहुत मेरे ख्याल से 15-20 साल पुराना पुल होगा, जो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया और बाढ़ की वजह से। तो बाढ़ जो है, मतलब नदी आदमी मनुष्य के जीवन के हर पक्ष को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करती है, चाहे वो उनकी आजीविका हो, उनकी कृषि हो, या फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जो बात हो रही है पूरी दुनिया में। तो हर चीज को मैं अपनी तस्वीरों के जरिए इन चीजों को दिखाना चाहूंगा। तो इस पुल के टूट जाने से, ये देखिए छोटा पुल है, इसमें एक ही गाड़ी, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी भी एक ही जाएगी। अगर पुल के दूसरे साइड से कोई वाहन आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो उसको रुकने, दोनों साइड से सिर्फ पैदल लोग, 2 पहिया गाड़ियां और जो पशु हैं वो जा सकते हैं। तो एक ही साइड से आपको जाते हुए दिख रही होंगी सारी गाड़ी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि हमारी इकोनॉमी जो है 80% तक गिर गई। जो पंडे पुजारी हैं उन्होंने कहा कि 20% तक आवक जो है लोगों की कम हो गई। तो नदी लोगों की जिंदगी को कैसे, उनकी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, ये इस वाकये से हमें पता चलता है, जो 2021 में बाढ़ आई थी काफी। फिर अगली तस्वीर। हम जब चले तो सेवड़ा के पास ही, सेवड़ा से थोड़ा आगे बढ़े तो ये हमारे सुनील बाथम हैं, ये हमारे पहले साथी बने इस यात्रा में। और सुनील ने हमें अपने नाव से उस तरफ ले गए, और वहाँ जालन और बालन बोलते हैं। इस ओर को जालन बोलते हैं जहाँ हम हैं, और जब दूसरी ओर जाते हैं उस पार, जो आमतौर पर हिंदी में उस पार बोलते हैं, नदी के उस पार, तो उसको बालन बोलते हैं वो लोग। तो ये अपने ले गए और इन्होंने दिखाया कि किस तरह से बाढ़ से खेत बर्बाद हुए हैं, किस तरह से उनके अमरूद के बगीचे थे और दूसरे फलदार पेड़ थे वो गिर गए, और किस तरह से इनको दिक्कतें हुई। और ये लोग काफी अच्छे मिले हमें पूरे रास्ते में। वो हमें रुकने के लिए बोलते थे, हमें खाना खाने के लिए, इन्होंने भी बहुत आग्रह किया कि खाना आप हमारे साथ खा करके जाओ। लेकिन हमारे पास समय नहीं था, और हम दोपहर तक और कहीं दूसरी जगह पहुंच जाना चाहते थे। तो सुनील हमारे पहले साथी थे, और अभी भी सुनील से हमारी बात होती है समय समय पर। और हाँ, सिंध एक बहुत ही सुंदर नदी है, इस तस्वीर से ही पता चल रहा होगा। तो ये एक महिला है जो हमें धोबियाई गांव में मिली। हम वहां से जब आगे बढ़े, और ये दिखा रही है, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, ये दिखा रही है कि किस तरह से बाढ़ जो है, बाढ़ से उनका घर जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, और काफी तेज बाढ़ आई थी सिंध में। आगे। ये भी धोबियाई के उस सॉरी पीछे, ये धोबियाई के उस पार जो गांव है, इसका नाम है धीमारपुरा। तो धीमारपुरा काफी ज्यादा इम्पेक्टेड रहा ये फ्लड से, बाढ़ से काफी ज्यादा क्षति हुई। मतलब महीनों बाद, ये जनवरी फरवरी का फोटो की तस्वीर है, और मतलब बारिश अगस्त में बाढ़ आई थी। 6 महीने बाद भी जो है लोग तंबुओं में रह रहे हैं, लोगों के पास। और हाँ, ये जो भ्रष्टाचार की भी कहानी बताती है, जैसे निचले लेवल पे मैकेनिज्म काम नहीं करता है। लोगों ने बताया कि जो बाढ़ राहत के पैसे आए वो उनको ठीक से नहीं मिले, और पटवारी और जो निचले स्तर के लोग हैं उन पंचायती व्यवस्था में, उनकी भी इन्होंने शिकायत की, जो ग्रामीण हमें मिले। तो नदी कैसे हर चीज को परिभाषित करती है, ये इस तस्वीर को दिखाने का मेरा आशय है, मतलब है। आगे।
जी, मैं हूँ और मेरी साथी एहसानी है। जब हम इस गांव से गुजर रहे थे धीमारपुरा से, तो उस समय की ये तस्वीर है। पैदल ही हम लोग चल रहे थे। ये रिवर बेड फार्मिंग, मतलब जमीन, नदी, सिंध तो बहुत बड़ी नदी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, मंझले साइज की नदी है। 550-600 किलोमीटर लंबी नदी है। और उस तरह से इसका जो रिवर बेड गंगा की जैसा नहीं है या यमुना के जैसा नहीं है, या और जो बड़ी नदियां, लेकिन हाँ है, कहीं कहीं है। और ये एक किसान है जो हमें मिले रतनगढ़ माता मंदिर के पास। रतनगढ़, ये मेडपुरा गांव है। रतनगढ़ रतनगढ़ का भी पुल जैसे सेवड़ा में पुल टूटा, उसी तरह से रतनगढ़ में भी टूटा था। तो ये खेती कर रहे हैं। ये बहुत कम अपवाद में ये कुछ कुछ जगह पे ऐसा दृश्य दिखा। इतना बड़ा तो हमें कहीं नहीं दिखा हमारे 160 किलोमीटर के दायरे में। तो इन्होंने बताया, और लोग, हम समझते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है या वो उनको कम जानकारी है। तो इन्होंने और इनके भाई ने बहुत साइंटिफिकली हमें समझाया कि कैसे ये रिवर बेड फार्मिंग जो है हमारे हमको ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इन्होंने बताया कि इसमें जो मिट्टी होती है वो काफी भुरभुरी होती है, और ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, और उपज जो है 1.5 से 2.25 गुना तक ज्यादा, मतलब 160% ज्यादा होता है, जो हम खेत वाली मिट्टी में करेंगे। और कई तरह की सब्जियों की खेती ये करते हैं। और अगर इसी रेत को, ये रेत मिली हुई मिट्टी है, काफी हल्की है, ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, तो अगर इस रेत को हटाते हैं तो इनकी खेती तो नुकसान होगा ही। नदी के पानी के धारण करने की क्षमता, वो जो वाटर को अपने अंदर रेत नहीं रहेगा तो नदी पानी नहीं रख सकती है। प्लस जो जलीय जीव है, जो लोगों ने बताया कि बालू के उठाव के चलते, रेत के उठाव के चलते जो है बहुत जगह घड़ियालों का और मगरमच्छ का जो है खतरा, चूंकि ये चंबल चंबल के साथ वाली नदी है, तो चंबल और सिंध, इन नदियों में किस तरह से खतरा बढ़ा, ये हमें कई ग्रामीणों ने बताया। इस जगह पर भी हमें लोगों ने सोचा कि हम शायद रतनगढ़ माता मंदिर में दर्शन करने आए हैं और हम कोई धार्मिक कार्य करने आए हैं। तो लोगों ने हमें कहा कि वहां नहाना मत, वहां मगरमच्छ आपको काट लेंगे, मतलब पकड़ लेंगे, ये करेंगे। हमने कहा नहीं, हम नहाने के लिए नहीं आए हैं, और हम, आपने बता दिया, हम सावधान रहेंगे। हम नदी को देखने और नदी पे रिसर्च कर रहे हैं, नदी की स्टडी कर रहे हैं, हमारा ये काम है। सिंध के इलाके में नील गाय का काफी ज्यादा, नील गाय ही नहीं, जो गाय है हमारे यहाँ, गाय को बचाने को लेकर बहुत सारी चीजें हुई, कई लोगों को मतलब हिंसा भी हुई। लेकिन गाय, दोनों तरह की गाय की स्थिति से लोग बहुत परेशान है। छुट्टे गाय दिन में परेशान करते हैं, नील गाय रात में परेशान करती है। तो ये एक परिवार में हम रुके हुए थे, तो वो लोग सामूहिक रूप से, हम जिनके यहाँ रुके थे, मास्टर साहब वो उस दिन नहीं गए हमारे लिए। ये उनके साथ ही आए थे बगल से कि चलिए हम लोग चलेंगे अपने खेत की रखवाली करने। तो ये किसान को रात में खेत की रखवाली करनी होती है। ये टॉर्च है, उनके पास लाठी है, और वो वहां पे एक झोपड़ी नुमा बना करके खेत में रहते हैं, और सामूहिक रूप से वो लोग नील गाय, नहीं तो वो उनकी फसल को पूरी तरह से नुकसान कर देंगे। सिंध में जो बाढ़ आई थी, उससे 3 पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। सेवड़ा का मैंने बताया, दूसरा अभी जो रतनगढ़ माता मंदिर के पास है, वो एक पुल है, और एक लांच का मैंने जिक्र नहीं किया चूंकि काफी। और ये उससे आगे की ओर है, ये डबरा है जगह, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर के बाद दूसरा प्रमुख शहर है वो। तो डबरा में ये है, ये पुल भी एक साइड, मतलब किनारे से एक क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें आप अगर गौर से देख पाएंगे तो एक पे ही वाहन चल रहा है। एक पुल पे 2 पुल हैं, एक पे ही वाहन गाड़ियां चल पा रही थी उस समय, क्योंकि एक वो किनारे में तो बहुत सारे पुल डैमेज हुए, मुझे लगता है 7-8 होंगे, 6-7 होंगे, लेकिन 3 तो पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गए। ये अगले स्लाइड में ये है संगम। तो ये संगम है जो सिंध का, महुवर का और पार्वती नदी का, ये तीनों नदियों का संगम है। और ये धुमेश्वर महादेव एक मंदिर है, उससे करीब है। तो यहाँ पे 3 नदियां, यहाँ पे एक साइड से सिंध महुवर जा रही है, और दूसरी साइड से सिंध आकर के मिल रही है, और आगे में पार्वती की छोटी सी धारा मिलती है। तो ये संगम है सिंध का।
जब हम सिंध से संगम से आगे की ओर बढ़े तो हम धुमेश्वर में रुके। धुमेश्वर में वहाँ पे आश्रम है मंदिर का। धुमेश्वर मध्य प्रदेश का काफी प्रसिद्ध मंदिर है और शिव जी का। और ये वहाँ पे लाहौरी गांव है। लाहौरी गांव में ये किसान मिले हमें बिहारी। तो बाढ़ से इनके खेत इनके घर मकान गिर गया। इनकी दुकान थी वो भी ध्वस्त हो गया। तो ये अपने गन्ने के खेत में ही है। पीछे में वो मजदूरी गन्ने की कटाई कर रहे हैं और ये झोपड़ी नुमा घर में ही ये अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते। तो इस तरह से बाढ़ से कैसे इनकी क्षति हुई, कैसे इनकी आजीविका चली गई। और 2.5 बीघा के ये किसान है, 2.5 बीघा किसान खेती है इनके पास। तो इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी हो गई, उससे काफी इम्पैक्ट हुआ। ये है मोहिनी रियर वायर। तो ये काफी पहले बना था जब अटल जी विदेश मंत्री थे, मतलब ये 70 के दशक का है। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और इससे पानी छोड़ा जाता है। इससे 15 किलोमीटर आगे जो है मड़ीखेड़ा है। तो मड़ीखेड़ा से यहाँ पे पानी आता है और ये सिंचाई के लिए बना है। इससे कई सारी धाराएं निकलती हैं। मतलब और हाँ, ये जो नरवर के पास ही है, नरवर में ही है, बल्कि नरवर से 2-3 किलोमीटर, मतलब शहर से, बाजार से अंदर की ओर है वो जो ये डैम है मोहिनी। और ये नरवर का किला है। मैंने बहुत सारा किला देखा है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, ये सब काफी प्रसिद्ध है। लेकिन ये नरवर का जो किला है दुर्लभ किला है। मतलब मुझे, और इसके बारे में मैं जब गया था मध्य प्रदेश, जब मैं जा रहा था और उसके बाद भी मैंने जब सर्च किया उनके वेबसाइट पे, पर्यटन पे, तो जो वहाँ के 5-10 किले हैं उसमें भी भारत के तो जो किले हैं उसमें नाम छोड़ दीजिए, जो इनके स्टेट के भी हैं, जो इनका जो पर्यटन वाली साइट है, टूरिज्म वाली, उसमें भी इसका नाम नहीं है, दूसरे किलों का नाम है। लेकिन इसका जो इसको जिस तरह से बनाया गया है, जितना ये उस समय जैसे मुगलों के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह से आक्रमण होता था, किला उसी लिए सुरक्षा के लिए बनाते थे। ये बहुत ही दुर्लभ किला है। और ये ऊपर से दिख रहा है वो नरवर शहर, छोटा सा वो कस्बा है या टाउन है। ये अटल सागर डैम है, जिसको ऑन पेपर तो अटल सागर डैम ही बोलते हैं। मड़ीखेड़ा नामक जगह पे है तो इसलिए इसको मड़ीखेड़ा भी लोग बोलते हैं। बोलचाल में मड़ीखेड़ा ही बोलते हैं। अटल सागर डैम है। ये 2008 में शुरू हुआ है और पहली बार 2010 में ऐसी स्थिति हुई कि इसके 10 के 10 गेट खोलने पड़े। और 10 के 10 गेट एक दिन नहीं खोलने पड़े थे, तो 2 दिन खोलने पड़े थे। मैंने हाल में इसका डेटा कलेक्ट किया है। तो दो बार, और इतने सालों में, 14-15 सालों में कभी भी इसके 10 गेट तो कभी नहीं खोलने पड़े थे। मैक्सिमम 1 या 2 टाइम 8 गेट खोलने पड़े थे। और 10 गेट पहली बार 2021 में खोलने पड़े, वो भी 2 दिन। और काफी ऊंचाई तक, शायद 10 मीटर या उतने ऊंचे तक इनको, मतलब पूरी तरह से जो खोलना होता है गेट को, वो किया गया। और उसके कारण ही काफी भयंकर बाढ़ आई थी और उससे काफी क्षति हुई। तो ये है मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन। और मैं कुछ अपनी बात कर सकता हूँ या टाइम हो गया तो? ये हाँ, ये धुमेश्वर के पास ये नदी किस तरह से सिंध कितने खूबसूरत तरीके से बह रही है, ये वीडियो अगर प्ले हो जाए तो लोग देख सकते हैं। ये मंदिर है धुमेश्वर, अच्छी है। कि आप लोग को इतना साफ पानी मिल रहा था और हम आज बातें कर रहे थे पानी पोल्यूटेड है, तो कहीं ना कहीं बीच में किसी कोने में पानी तो हमें अच्छा भी है जहां आप लोग वॉक करते हैं। तो मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। जी, जो प्रदूषित नदियां हैं, 600 कुछ नदी है, उसमें सिंध का नाम अभी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 10-20 सालों में हो सकता है सिंध का भी नाम आ जाए। जो 2018 में अंतिम बार लिस्टिंग हुई है पोल्यूटेड रिवर की, और तो सिंध नहीं है। सिंध पे आबादी का लोड नहीं है, लेकिन सिंध के बगल में जो गांव हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी अभाव है।
तो जो बिल्कुल बगल के गांव हैं, जो सटे हुए गांव हैं, जो 100 मीटर दूरी के गांव हैं या 150-200 मीटर की दूरी के गांव हैं, 300 मीटर की दूरी के गांव हैं, तो उनका जो दूषित पानी है सीधे नदी में बहता है और वो एक बड़ा खतरा है। कोई भी सिंध के 600 किलोमीटर सिंध बहती है, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसकी आबादी जो है 10 लाख, मतलब सिटी नहीं है, सब टाउन है छोटे छोटे। मुझे लगता है कि ज्यादा आबादी वाला एक डबरा ही जो शहर है वही है, तो उसका भी है, लेकिन जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है वो काफी कमजोर है। थैंक यू सो मच बागेश्वर जी एंड राहुल जी। मेरे ख्याल से अब मैं फोरम को ओपन करूंगी, सभी लोगों को सवाल पूछना है या कोई कमेंट्स देना है या कोई भी सवाल, और मैं माइक, आपका वीडियो मुझे रिसीव हो गया है तो मैं उसको प्ले भी करना चाहूंगी। सो ऑल पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पोस्ट देयर क्वेश्चंस ऑन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्पेसिफिक टू एनी स्पीकर यू कैन ऑल्सो आस्क देम। और बागेश्वर जी और राहुल, आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो प्लीज ऑन रखें, बिकॉज पार्टिसिपेंट्स को सवाल पूछने में आसानी होती है, और जो सवाल पूछे वो भी अपना वीडियो ऑन कर दे। सो माइक, वुड यू लाइक द वीडियो टू बी प्लेड नाउ, बिकॉज आई एम इन कंट्रोल ऑफ इट? ओके, गो, आई विल डू दैट। Okay, please confirm when you see the video. Yeah. Is it playing? Is it playing? Because from my end it is playing, huh? So No, we don't see it playing. you don't see it play? Okay. Just let me see. It's a very short video and I'm playing it. So I don't know what's wrong with it, but let me just retry. So if there are any questions so far with all the three participants, please ask. An important observation जो मेरे लिए रहा कि आपने जो जब दिखाया कि नदी की बेड पे जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें अच्छी उपज होती है, तो मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो लॉ में one farming is allowed on water river beds and lake beds. This is because most of the rivers and lakes in our country are meant to be dry, and then it rejuvenates with the monsoon coming. So that's why river bed पे खेती किसी भी दिन नॉन रिवर बेड या लैंड पे करने से खेती उसकी अच्छी ही होगी। तो ये हमारे लॉ में भी अवेलेबल है ये सुविधा। अब हम जैसे लेक्स और नदी में शहरों में रिवर फ्रंट बना रहे, लेक फ्रंट बनाते हैं, तो उसमें रिवर पूरी भरी हुई रहती है, इसलिए हम उसमें खेती नहीं कर पाते हैं, जो अपने आप में एक लॉस है रिवर के इकोसिस्टम रिजुविनेशन के लिए। Do you see the video? Yes, sir. Is the sound audible? We just saw the Very end. short. You saw the end. Let me just play it again. It's a very short video, huh? Yeah, very short and yeah. मानसी मैडम, एक मिनट मुझे बोलने देंगी आप? जी आप प्लीज बोलिए, आप लोग का ही तो आज प्लेटफॉर्म है, और फिर मैं शांतनु को बुलाना चाहूंगी। जी। आपने जो बात बताई बहुत सही कहा, और मैं इसी पे एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि अभी एनजीटी का शायद कोई एक ऑर्डर आया है कि जो वो ईंट लगा देते हैं, कंक्रीट कर देते हैं किसी भी वाटर बॉडीज के किनारे में, तो वो उस पे एक कोई आदेश आया है। और अभी बिहार के दरभंगा में जो है, वहां पे शहर में या यूनिवर्सिटी, मेरे एक साथी हैं इंडिया टुडे में, तो उन्होंने स्टोरी करी है उसमें इंडिया टुडे के लिए, उसके लिए कि उसको एनजीटी के ऑर्डर के बाद वो सारे ईंट जो है, जो कंक्रीट है, जो स्लैब है लगा दिया गया था, उसको हटाया जा रहा है। और मैं सुंदरवन गया था पिछले साल, तो सुंदरवन में भी जो
वहाँ तो मिट्टी के बांध बनाते हैं जो वहाँ के सरकार भी बनवाती है और जो मछुआरे हैं, स्थानीय लोग हैं, लेकिन कई जगह पे वो कंक्रीट का कर दिया गया है। तो कंक्रीट हो सकता है, सुंदरवन की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, वो एक एक्सपर्ट का विषय है, डिटेल का विषय है, लेकिन जो छोटे वाटर बॉडी है, जो छोटे छोटे शहरों में है या कहीं है, उनको इस तरह से करना एक काफी दिक्कत वाली बात। एनजीटी ने कई बार इस बारे में एक्चुअली वार्निंग दिए हैं काफी अथॉरिटीज को कॉन्क्रीटाइजेशन पेपर। जब हम डैम्स की बात करते हैं और डैम से भी शुरू करते हैं तो वहां कॉन्क्रीटाइजेशन तो हमने शुरू कर ही दिया है, पर अब तो लेक बेड और रिवर एज पे भी कर रहे हैं हम, इतने रिवर फ्रंट्स कर रहे हैं, इतने लेक फ्रंट्स कर रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है, इसीलिए सेंसिटाइज करना जरूरी है और मुझे लगता है सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी अब वॉक और एक्सपेडिशन पे ले जाना जरूरी है ताकि हम उनको दिल से जोड़ सके। एक सवाल है विनीता श्रीधरन, please unmute yourself and ask the question or maybe give your comments so that you can get engaged with our speakers. No, sorry, ma'am. There's no question. I only applauded the two speakers and I find it very interesting. I'm from Maharashtra. Yeah, thank you. Thank you so much, Vinita. So may I now invite Shantanu Pratap Singh from CGAP, because he was the one who actually initiated for this session, because he is planning an expedition, all women expedition on Ganga, and we are going to work on plastic. So over to you, Shantanu. And Shantanu, please say something about the initiative which you are planning to take up. Right. Thank you so much, ma'am. और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुशी है आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के, क्योंकि अपना मैं बहुत विस्तार से परिचय तो नहीं दूंगा, बस इतना इस प्लेटफॉर्म के लिए जो मेरा परिचय रेलेवेंट है कि मेरा जन्म घाघरा के तट पर हुआ, मेरी परवरिश गोमती के तट पर हुई और अब फुल सर्कल के साथ अब गंगा पे हम लोग काम शुरू करने चाह रहे हैं। सीगैप से मेरा जुड़ाव वैसे पिछले वर्ष से है, वैसे मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी हूँ। जो हम लोगों ने पिछले वर्ष से इस विषय पे सोचना शुरू किया, तो ये तीनों रिवर्स जिनका मैंने अभी अपना आपको मेंशन किया अपने व्यक्तिगत जीवन के, उसके तो गोमती को तो मैंने अपने सामने देखा है कि क्या हालत समय के साथ होती गई, और 15-20 साल बहुत बड़ा समय नहीं है जिसमें नदियां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपने सामने खत्म होते हुए देखी हैं। तो सीगैप के अंतर्गत हम लोग एक एक्सपेडिशन प्लान कर रहे थे जो कि स्टडीज और रिसर्च के साथ साथ आउटरीच और सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करें। तो जस्ट 2 मिनट, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको उन तीनों कंपोनेंट्स के विषय में मैं बता देता हूँ। सीगैप का टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन इन द गंगा रिवर सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम है, और ये इंडिया और बांग्लादेश में सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की एक कोशिश है, जो कि हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे। मानसी मैम इज आल्सो एसोसिएटेड विद अस एज अ गाइड एंड an advisor, and she's leading our research component. So इसके 3 components हैं। पहला जो कि रिसर्च ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन है, क्योंकि एक चीज जो प्रॉब्लम का स्केल शायद उस एक्सटेंट तक पॉलिसी मेकर्स को या लोकल कम्युनिटीज को इस बात को पहुंचाना जरूरी है कि इस समय प्रॉब्लम का स्केल क्या है। सो गंगा रिवर सिस्टम इज द सेकंड मोस्ट पोल्यूटिंग रिवर कैचमेंट एरिया इन द वर्ल्ड। इस स्केल की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो probably annually in 2024 metric tons of plastic pollution were produced every year, and large portion of that वो landfills में जाता है या rivers में जाता है। So problematic sites are there across the length of the Ganga, and एक जो issue आती है कि इसकी data availability चाहे local government bodies के हो या state government bodies के पास हो, या तो time lag के साथ आता है या फिर state capacity इतनी limited है कि उसका solution वो resolve करने के लिए वो नहीं संभव हो पा रहा है। So that's एक component इसका research है to create a continuous platform जिससे एक continuous research इस रिवर कैचमेंट एरिया पे एटलीस्ट जनरेट होती रहे ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन स्पेसिफिकली। द सेकंड एस्पेक्ट है ऑन स्टार्टअप्स एंड सॉल्यूशंस एंड बिजनेसेस, जो एक तरीके से बिहेवियरल चेंज एस्पेक्ट भी है, बट साथ ही में हम लोग का एक जो स्ट्रेंथ इंडिया में जो इमर्ज करके आया है वो क्लीन टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जो प्रॉब्लम ये इकोसिस्टम फेस कर रहा है अपने सॉल्यूशंस को स्केल अप करने पे, तो बहुत स्टार्टअप्स हैं विच है वेरी प्रॉमिसिंग आइडियाज, चाहे वो प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हो या फिर क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो,
उनका वो ग्राउंड कनेक्ट, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ नहीं है, कि वो अपने सोल्यूशन को स्केल कर सके, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि वो लैब्स तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं वो आइडियाज, और वो ग्राउंड लेवल पे कम्युनिटीज तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका इम्प्लीमेंटेशन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज ही संभव है. सो दैट इज द second component, which is we are addressing through 3 expos and symposium, one in Rishikesh, one in Varanasi and one in Dhaka. और जो तीसरा कंपोनेंट है, which is also our long term objective, कि रिवर्स पे और एक्वेटिक पोल्यूशन पे काफी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, बांग्लादेश पे और बाकी कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं. बट विद इन इंडिया हम इन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, जहां पे सिटीजन साइंटिस्ट भी हो, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स भी हो, सोल्यूशन प्रोवाइडर्स भी हो और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भी हो, एंड बाकी जो नॉन प्रॉफिट और एनजीओ जो काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले जिससे एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इस पे रहे. तो जैसा कि माइक सर हैड मेंशन्ड कि अतुल्य गंगा फाउंडेशन हर साल कुछ एक्टिविटी गंगा के अराउंड करने की कोशिश कर रही है. सो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव हमारा भी यही है कि एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट इज थ्रू आउट द इंटायर ईयर ऐसे रहे, ये एक इवेंट बेस्ड इंटरवेंशन इन इश्यूज पे ना रहे. सो हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्लेटफॉर्म इसके लिए थ्रू सी गैप बिल्ड करना चाह रहे हैं, एंड ये 3 कंपोनेंट्स के साथ एंड विद द सपोर्ट ऑफ एवरीवन जो काम कर रहे हैं on Ganga as well as other rivers and on pollution and other aspects. इस प्लेटफॉर्म के साथ और ऑब्जेक्टिव वाज टू टेल एवरीवन कि हम लोग ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इनवाइट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बिकॉज वी वांट टू बिल्ड एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म. सो जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, एनीवन जो इसमें काम कर रहे हैं, इफ यू आर इन टच विद देम, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड टू कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट विद देम, और जिस भी कैपेसिटी में हम उनको अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ सकते हैं, वी आर हैप्पी टू डू दैट. थैंक्स शांतनु. आई विल रिटर्न टू माइक नाउ, क्योंकि माइक आप लोग प्लास्टिक मैपिंग कर रहे हैं, आप लोग इतने ज्यादा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और आप लोग जिस स्टैचर से आते हैं और जैसे एक्सपेडिशंस कर रहे हैं, यू ऑल्सो समहाउ गेट वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद द कम्युनिटी. इस पूरे जितनी बार भी आप लोग जा रहे हैं और जितने रिसर्च कर रहे हैं और जिस तरह का आपका नेटवर्क है, आपको क्या लगता है कि हम लोग किस तरह से वी कैन रियली अपस्केल दिस इनिशिएटिव्स ऑफ मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड दैट मल्टीपल यूज प्लास्टिक या रिड्यूसिंग प्लास्टिक? व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर एक्सपेडिशंस? So Mansi, technical findings of pollution mapping, Jail Bhatt is here and his team is here. But I can tell you that, one is the people who are on the banks of rivers. They are directly responsible for getting the plastic out of their homes. Yes. But from there, taking the plastic from outside the homes of people to the river is the fault of the system. So, in principle, Atulya Ganga doesn't want to point fingers, but we certainly are not afraid of showing the mirror, because without truth speaking, without mirror being shown to the society, we are not going to get any change. Learning, research, projects, ये सब करने कराने से ये सब they are theoretical exercises unless and until effectively the river gains. नदी का अपना भला अगर नहीं हो रहा, ये सारे के सारे रास्ते बेकार हैं. नदी का भला होने के लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा विदाउट पॉइंटिंग फिंगर्स. उसमें सिस्टम सबसे बड़ा प्लेयर है. अब खड़े खड़े सिस्टम को सुधारना आप, हम और हम सब की बस की बात नहीं है. 20,000 करोड़ रुपया नमामि गंगे और गंगा पे स्पेंड हो चुका है. एनजीटी आज भी खुश नहीं है. 40 पॉइंट तो हम ही लोगों ने बोले हैं जो बिल्कुल ही जहरीला पानी गंगा में गिरता है, लाइव गिरता है. 500 से ऊपर नाले हमने जियोटैग करके दे दिए हैं. बट जो 20,000 करोड़ से नहीं कर पाए बड़ी बड़ी गवर्नमेंट और जिसके पास सारे के सारे साधन हैं, हम अपनी पेंशन से तो क्या ही कर पाएंगे. बट मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक सभी का साथ नहीं होगा, सबने मिलना है. यूजर उसमें आपके बच्चे आज से एजुकेट होने शुरू होंगे, उनके माइंड में नदी की एम्पैथी शुरू होगी. कम्युनिटीज वहां छोड़ के ना जाएं. निषाद कम्युनिटी के 2 बच्चे हमारे साथ पोल्यूशन मैपिंग थ्रू आउट कर रहे हैं. कभी कभी तो वो रो देते हैं
कि जिस पानी पे, जिस नदी के प्रोडक्ट्स पे उनकी कम्युनिटी चलती थी, वो सब छोड़ छोड़ के उसको जा रहे हैं। उनकी पूरी कम्युनिटी ही समाप्त हो रही है। दे आर ऑल पुलिंग रिक्शास और डूइंग इन कंस्ट्रक्शन वर्क, और दे आर डूइंग होल लॉट ऑफ दैट स्टफ which a community should not be doing, which stays next to the river. So ये कम्युनिटी का बचाना तो एक लिटमस टेस्ट है कि ये कम्युनिटीज बचें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर वाराणसी का सीवेज, उसका स्लोप गंगा की तरफ है, तो उसमें मैं उल्टी तरफ फ्लश कर ही नहीं सकता। तो ये जो सिस्टमैटिक चीज है, ये तभी सुधरेगी जब सभी के माइंड में नदी की एम्पैथी होगी और डिसीजन मेकर्स के माइंड में इसको सुधारने का चक्कर होगा। ऐसा नहीं है, लंदन में टेम्स का स्लोपिंग चीजों को बदला गया है और वर्ल्ड में सभी जगह बदला गया है, और हम सिर्फ इसको पोस्टपोन करे जा रहे हैं। दिस इज द सेंस आई गेट। पीपल ऑन द रिवर आर रेडी टू डू एनीथिंग। उनको आप थोड़ा सा साधन अगर दे दो और थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव दे दो, वो सब करने के लिए तैयार हैं। सिस्टम मेरे हिसाब से अभी तक तैयार नहीं है। सिस्टम काफी कॉस्मेटिक काम कर रहा है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। नॉट विद स्टैंडिंग जीरो से तो बेहतर है, जीरो काम से काफी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बहुत कुछ अभी करना बाकी भी है। इसमें जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को मिरर दिखाना पड़ेगा, जनता को अपने तरीके नहीं, जनता को जवाबदारी मांगनी पड़ेगी। आज दिल्ली में जवाबदारी मांगी जाती है जनता के। मेरे ऐप पे जब 400 हो जाता है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं और कोर्ट जवाब मांगना शुरू कर देता है, और केजरीवाल जी इसका जवाब देते हैं। ऑड इवन कर देते हैं, बड़े ट्रकों को रोक देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जनता अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। नदियों के बारे में जनता ने अकाउंटेबिलिटी मांगना शुरू ही नहीं किया। You are far from there, हाँ? जी जी, मर गई तो मर गई। अब यमुना, कोई 8 साल में पोल्यूशन यमुना का डबल हो गया, किसी को जो भी नहीं रही है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू बट नॉट अर्जेंट। और इंसान की ये फितरत है कि जो अर्जेंट नहीं होता उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता। तो अर्जेंट था तो ध्यान गया। जी जी जी। सो ये मेरा आई होप आई मैं जानना approximately answered your question, although I don't have accurate yes. answer. मैं जानना चाहूंगी, मे बी मैं बागेश्वर और राहुल को एक बार से वापस जाके पूछना चाहूंगी कि एज एक्सपेडिशनर्स, मुझे तो ऐसा लगता है जीवन में सबको ही एक्सपेडिशंस पे जाना चाहिए, और हमारे धर्मों में काफी धर्मों में ये एक प्रथा है जीवन काल की जो हम नहीं करते हैं। पर एक्सपेडिशन से हम लोग क्या, जैसे कम्युनिटीज को आपने मिला, डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू आया, पर जैसे हम अर्बनाइट्स को हम एक्सपेडिशंस पे ले जाते हैं, या हम खुद भी अपने जीवन में देखें, क्या हमारे लाइफ में चेंज आता है टू लुक एट थिंग्स? जी, एक्सपीडिशन पे जाना चाहिए, और इसके साथ साथ एक्सपीडिशन में कुछ एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल खाली माइंड लेके अपना, बिल्कुल हर बार प्रेजुडिसेस बहुत सारे होते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारी बातें होती हैं कि हम वहां जा रहे हैं तो वहां की कम्युनिटी ऐसी है, वहां लोग ऐसे हैं। कोई एक भी जजमेंट लेके नहीं जाना चाहिए, हमें जाके खुद ऑब्जर्व करना चाहिए। तो और बहुत बहुत फर्क पड़ता है। माइक इतने सालों से ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका और अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि ट्रेवल करने से एक दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल जाता है। और दूसरा है कि हमें काफी सारी वो चीजें समझ में आती हैं जो हम कब से सोच रहे थे कि ये अच्छी ही है सोसाइटी के लिए, जैसे डैम बनना या एनर्जी प्रोडक्शन, हाइड्रो पावर। ये अभी तक यही माइंड में रहता है कि एनर्जी प्रोडक्शन इज गुड, बट वहां जाके ये हमने रियलाइज किया कि एनर्जी प्रोडक्शन लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कम्युनिटी जो एक जनरेशन से भी ज्यादा हो चुका है, और अभी तक वो वहां पे नहीं हो पाए। तो उनको क्या फायदा? अभी चीता री इंट्रोडक्शन हुआ है, तो चीता री इंट्रोडक्शन में जितने हजारों लोग डिस्प्लेस हुए होंगे, क्या ये वर्थ इट था उन लोगों को डिस्प्लेस? क्योंकि सिर्फ लोग डिस्प्लेस नहीं होते, पूरी की पूरी नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, क्योंकि हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो हमारी वाइल्ड लाइफ से डायरेक्ट कनेक्ट कम हो जाता है। उन लोगों का डायरेक्ट कनेक्ट इतना ज्यादा है कि जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो उसकी वैल्यू भी हम नहीं बयान नहीं कर सकते। कि उनकी जो नॉलेज है वाइल्ड लाइफ की, पेड़ पौधों की, जो नॉर्मली कुदरत की नियमों की जो नॉलेज है, उसको हम साइंटिफिक फिनोमिना जरूर पढ़ते हैं, लेकिन
एक्चुअली वो लोग उसको जीते हैं। तो वो चीज जब डिस्टर्ब होती है तो वो दोबारा से रिसेटल होने को कई जनरेशन्स लग जाती हैं। इसीलिए ये सारी चीजें बाहर जाएंगे एक्सपीडिशंस पे, अलग अलग तरह की पहाड़ों में भी जाते हैं, नदी के साथ भी, कोई कोई एक किसी भी एक चीज को पकड़ लिया, उसके साथ चलना शुरू कर दिया, तो उससे ये चीजें पता चलती। जी क्योंकि राहुल, मेरा sorry. बिलीफ है, बस छोटी सी एक बात है, मेरा बिलीफ है कि हमारा, हम इन्वायरमेंट को सेव करने की बात, हम आजकल इतना ज्यादा नैरेटिव बढ़ गया है, कंजर्वेशन, एंडमिज्म, थ्रेटन्ड, ये सारे बहुत बज़वर्ड्स बन चुके हैं। तो ये सब का कारण ये है कि हमारा एक डायरेक्ट कनेक्ट टूट गया है इन्वायरमेंट से, कि हमारा, क्योंकि हमारी डायरेक्ट डे टू डे लाइफ में वातावरण एक वो इतना ज्यादा हिस्सा नहीं है उसका। हम पानी है तो नदी में पानी ऑब्जेक्ट है, आता है, हमारा पानी जस्ट नदी लाइक से नहीं शॉपिंग। आता, नल से आता है। तो जब जब हमें ये पता चलेगा कि नहीं, मैं पंजाब में जालंधर में बैठा हूं तो मैं ब्यास नदी का पानी पी रहा हूं, तो जब ये कनेक्ट बनेगा तो हमें बात नहीं करनी पड़ेगी वातावरण को बचाने की, तब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा। तो वो राहुल, आपको लगता है कि हर स्कूल, हर कॉलेज में एक्सपेडिशंस पे लेके जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके यूथ के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं? बिल्कुल जाना चाहिए यूथ को लेकर करके स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। और वो नदी को समझने के लिए, अपने पर्यावरण को और जो भी चीजें हैं जीवन से जुड़ी हुई, उनको समझने के लिए, मेरे ख्याल से खुद को समझने के लिए भी सबसे अच्छा जरिया है। क्योंकि जब आप नदी के जब वहां जाते हैं और आपके पास न रहने का ठिकाना होता है, न खाने के लिए होता है, आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं वो आपको हमें तो, हम लोगों को एक एक दिन में 5-5 लोगों ने कहा दिन में कि खाना खा लीजिए आप, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें आगे जाना है तो नहीं खा पाएंगे, किसी एक के यहाँ ही खा पाएंगे, मतलब। और लोग कैसे वो आपकी मदद के लिए आते हैं और कैसे आपको, और मुझे लगता है कि उससे लोगों के जो चीजें हैं, इकोनॉमी है, क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, बाकी चीजें जो भी है, एजुकेशनल जो भी चीजें हैं, उसके अलावा खुद को समझने के लिए, खुद के व्यक्तित्व के विकास के लिए, कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट हो, आप कैसे हेल्पफुल कैसे बने, अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए, वो उन लोगों के साथ रह करके वो चीजें समझ में आती है। ना सिर्फ सिंध के किनारे, बल्कि मैं गंगा के किनारे भी यात्रा की, तो कई लोगों ने मुझे रहने को दिया, जगह दी, खाने के लिए जगह दी, जबकि मेरे पास दूसरे संसाधन थे, विकल्प थे, लेकिन उनका आग्रह था। तो ये होना चाहिए। और माइक सर की एक बात मुझे बहुत, कनेक्ट भी होते हैं। हाँ जी, एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी कि मछुआरे जैसे जाने लगे, उनकी जो स्थिति है, ये मुझे बहुत ही वो सबसे अच्छी परिभाषा है नदी के स्वास्थ्य की और नदी के आसपास की जो चीजें हैं, तो वो काफी, मछुआरे जो है वो पैरामीटर्स है। मानसी, Yes, हमारे Mike. हमारा If सौभाग्य there are है। any questions from anyone, please ask. मानसी, Go ahead, मानसी, Mike. Please go ahead. we are very lucky today. We have an amazing example of environment protection. जनरल विनोद भट्ट ने एक एक्सपेडिशन किया था नंदा देवी का, और जी, उन्होंने कोई 3 से 6 महीने पूरी नंदा देवी नेशनल पार्क को, उसकी प्लास्टिक और उसका सामान, एक्सपेडिशन का सामान जो लोग फेंक जाते थे, वो पूरे को उठा के लेके आए थे। एंड जनरल भट्ट सर, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट? Yeah. One sec. Yes, sir. Good evening, Mansi and all the listeners. I'm sorry, I got stuck in a Kishan Mela jam, so I couldn't get through in time. So, firstly, this Atulya Ganga team is totally an adventurous team. We are 4 or 5 of us who have done a lot of mountaineering expeditions, and I started my environmental thing from 1993, when Edmund Hillary said that Himalayas are very dirty, there is so much mud lying there. So I changed my expedition from a normal mountaineering expedition to an scientific environmental expedition. And we cleaned all the camps from Camp 5 till down below and en route. We brought 1,500 tons of garbage. And in Lodhi Road, WWF exhibition, for 3 months, we displayed all these things. We had our whole thing. We had 13 scientists with us who carried out flora, fauna, avifauna, all then skiing, mountaineering,
rafting. We did so many things. And I think it was a unique expedition. And we had that time also given recommendations that, garbage should be checked and people should ensure that whatever they are taking, at least 70% they bring back. But things don't happen, but we don't have to give up. A few things I want to highlight here. Firstly, you said that everyone is doing upstream, why Mike's team is doing downstream. Ours was a Mundmal Parikrama, which is being done first time after Vedic period. We started from North Bank, went around to Ganga Sagar, crossed over, and then came from the South Bank upward. So we did both ways. That's why it took 190 days. And it was 5,530 kilometers. And for value addition, we said just the yatra will not do anything. Yatra में आप ऐसे ही फोटो दिखा के कुछ बात कर सकते हैं, but उसका कोई end result नहीं होता है. So हमने फिर क्या सोचा कि we should do value added things. First, pollution mapping. In pollution mapping, for the first time, we took every day 3 to 4 samples and tested and uploaded them with the help of app into our website, and then carried out a study. And everyone said, let's take out water quality like AQI of air. So firstly, I was very doubtful about it because it's a very difficult work. But then with the help of IIT Ropar and Mohit Verma, who's here today, he's the XCN in PwC. Right now he's doing PhD in IIT Ropar. So we worked out and we have calculated WQI. Our aim, see all the rivers in the world, in the industrial time, Thames and all European rivers were black, absolutely. They also took 50, 60 years to clean. They took a lot of money, but there was Jan Andolan there. People did not accept a dirty water, which is lacking in India. In India, since 1985, a lot of money has been siphoned into the cleaning of river, and also putting up sewage treatment plants and various other things, diverting nalas. But it is not working because the people are careless. People say, Ganga Ma, they worship all the rivers, but they dirty it also. Second thing I want to tell you, as per the international protocol, we took all samples in midstream, 2 to 2.5 feet below the water surface. The water of Ganga, out of 224 places, 180 is good, excellent, and fair. Only in these 41 places, which Mike showed you on the slide, is either heavily polluted or poor. So we are trying to tell the government, we are trying to tell the state governments, focus on these areas. If these areas become clean, and the whole Ganga will be clean. Second point, which is most important, is due to our nature कि घर का कूड़ा निकाल के रोड पर डाल दो. ये हर घर वाला करता है. वही है, नदी के घाट बनाए हुए हैं अच्छे, बट पूरा कूड़ा करकट वहां डाल देते हैं. मरे हुए कुत्ते को डाल देंगे, कुछ कर देंगे. और हमारी जो मीडिया है उसी की फोटो खींच के लगाती है. Actually, I have suggested in my first report, second report we are preparing with IIT Ropar now, that अगर हम ये घाटों में एक 24/7 मेंटेनेंस ऑपरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दे दें किसी प्राइवेट एजेंसी को, और जितने भी विजिटर हैं उनसे 1 या 5 रुपया चार्ज करें, और दिन में 3 बार सफाई हो उसकी, तो पूरी गंगा साफ है. वहां फाउंटेन लगा दें जिससे कि पानी का ऑक्सीजन लेवल. Another thing, for the first time, any river in the world had been checked so thoroughly, and we have taken oxygen levels, dissolved oxygen levels. The dissolved oxygen level of 4 is supposed to be dead. 5 is fair. 6 to 14 is good, very good. You will be surprised. In Ganga, the oxygen level DO is 6 to 6.5 minimum. Otherwise, it is 14 also, 12 also. So, हमको निराश होने की जरूरत नहीं है. हमको जन आंदोलन चलाना है. जितने लोग हैं बेसिन में, हम उनके घरों में रहे, उन्होंने खाना खिलाया, किंवदंतियां सुनाई, बड़ी बड़ी पुरानी बातें सुनाई. बहुत इंटरेस्टिंग था. I can't share that in such a short time. But the thing is कि जो लोग हैं ना, नहीं है. हम इसीलिए चाह रहे हैं कि अपनी ऐप और वेबसाइट के द्वारा ये जितने 50 या 41 जगह हैं, रोज इनको पता चले कि तुम्हारा एरिया गंदा है. क्यों गंदा है? That DC, that local government, that Gaon Buda, that everyone should wake up now, and they should work, and people should force them to do it.
सेकेंडली, जैसे हम बोलते हैं गांव वाले अपना छोड़ देते हैं, अभी गंगा का फ्लड प्लेन्स 5-6 किलोमीटर चौड़ा है, एंड जो गांव का पानी आता है वो तो कभी पहुंचता ही नहीं है गंगा में। जी सो हम लोग बोलते हैं गांव वाले गंदा कर रहे हैं, गांव वाले बिल्कुल इसको नहीं मानते। दिखाओ हमारा पानी कहाँ जा रहा है, बिकॉज द रिवर इज सो फार ऑफ, द फ्लड प्लेन्स आर सो वास्ट। जी सो देयर आर हाँ। लॉट ऑफ लॉट। जन आंदोलन नहीं होगा, जैसे माइक ने कहा, जब तक सारे लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, स्पेशली ये 50 इलाकों के या जो 41 या पहले तो मैंने एनजीटी को रिक्वेस्ट किया था कि आप 100 करोड़ पीसीबी को दे, ये सीपीसीबी को दे रहे हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, फॉर 24/7 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने के लिए। इनको पहले 10 जगह लगाइए ना, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 24 आवर उनको रिपोर्ट दीजिए रोज कि ये है तुम्हारी हालत। उसके बाद अगले साल अगर 100 के 100 एक साल में नहीं लगा सकते, अगले आप ये 31 में लगाइए, आपका जी। पानी वैसे ही साफ होने लगेगा। जी बिकॉज वो डेली उनको डंडा लगेगा ना, लोग कहेंगे आप कर क्या रहे हो। बट वेरी वही मच है लाइक एन कि हम लोग आर्मी पर्सन स्पीकिंग। है, मैं आर्मी पर्सन, रिटायरमेंट के बाद That's आर्मी what थोड़ा I'm जाती है saying. ब्लड से, और हमारे तो सारा ग्रुप ही ऐसा ही है। You'll be surprised। ये मोहित वर्मा सर, से पर पूछिए। आम जनता को मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए ही हम जिंदगी में expedition कुछ से बात कर मुश्किल रहे हैं। नहीं है, जिंदगी में जी। कुछ मुश्किल नहीं है, टाइम लगता है, जी, पेशेंस टाइम चाहिए, लगता है, परसिवियरेंस चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अब बिल्कुल। जैसे मैंने ये 2 ही बात बताई, तीसरा हमारा है वृक्षारोपण का। कालेश्वर मिश्रा जी भी हैं ग्रीन इंडिया फाउंडेशन से, आज उनसे पूछ सकते हैं। पहले हमारा विचार था कि 1-1.5 करोड़ सीड्स हम उसमें गंगा के दोनों तरफ लगाएंगे। फिर हमने कहा, फौज में रहे, हमने बहुत प्लांटेशन किए, हमने कहा ये नहीं चलेगा, वो कहाँ गए सीड किसको पता नहीं चलेगा। हमने कालेश्वर के ग्रुप के थ्रू 3.5-4 फीट ऊंचे पेड़ खरीद करके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेके 30,000 लगाए हैं पहले साल। इस साल तो इन्होंने और भी कमाल किया है, गंगा बेल्ट में करीब 86,000 लगा दिए हैं। हम चाहते हैं कि गंगा रिवर का जैसे वैदिक टाइम में दोनों तरफ वाइल्डिंग था, वैसा हो। ये काम भी हमारा साथ में साथ चल रहा है। तीसरा, आईटी रोपण करना चाहता है माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर रिसर्च, तो हम पिछले साल से उनको अपने साथ जोड़े हुए हैं। इस साल जब हम यमुना में जाएंगे तो हम 35 लोकेशन से सैंपल्स भर के उनको भेजने वाले हैं, जिसमें वो माइक्रोप्लास्टिक्स की रिसर्च करने वाले हैं। उनका काम ऑलरेडी चल रहा है, उन्होंने अपना लिंक शेयर किया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने काम को बताया हुआ है। और उसी के साथ अगर ये आपका प्लास्टिक वाला है तो वो भी हम कर सकते हैं। आप तो 3 जगह बोल रहे हो, हम तो पूरी गंगा में कर देंगे। एटलीस्ट वो 50 जगह तो हमने जाना ही है जहां गंदगी ज्यादा है। हर साल जाएंगे हम 11 साल तक, जी। हर साल हम वाटर क्वालिटी हाँ, वो निकालेंगे, रिपीटेड हर होना साल बहुत हम आईना दिखाएंगे। जरूरी है। जी, ये बिल्कुल। बेंचमार्क हमने पहले साल बनाया है। नाउ फ्रॉम देयर वी विल सी वेदर इट हैज इंप्रूव्ड और गॉन डाउन। नाउ जस्ट टू टेल यू, इस बार जो हमने 52 सैंपल्स लिए ऋषिकेश से कलकत्ता के करीब 50 किलोमीटर नीचे तक, गंगा सागर तक नहीं गए बिकॉज वहाँ टोटली सलाइन पानी है, वहाँ टेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज वो सब खत्म हो जाता है, द सैलिनिटी इज सो हाई। तो उसमें हमने देखा कि जो हमारे वेरी हेवीली पोल्यूटेड थे 5 नंबर वाले एरिया, खाली 3 एरिया में 5 से 4 हो गया है। बाकी 4 वाले जो थे वो पुअर ही हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल द लोकल पीपल, भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ना गवर्नमेंट कर रही ना कुछ कर रहा है। गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट ने अभी तक मतलब 60-70 हजार कर दिए होंगे 85 से खर्च, बट उन्होंने एसटीपी लगा दिया। वहां काम करने वाला ही बेवकूफ है, वो रात को मशीन बंद करके सीवेज अगर छोड़ दे, क्या करोगे आप? गवर्नमेंट क्या करेगी? है नहीं। उसमें तो जागरूक जनता चाहिए। वैसे हम जब ट्रैवल कर रहे थे यूपी में, सारे गांव वाले तो बहुत अच्छे थे और बहुत जागरूक हैं, बट देखो टाइम लगेगा एंड वी शुड नॉट, हताश नहीं होना चाहिए हमें। जी, हमें बिल्कुल। सबने मिलकर करना चाहिए। हमारा जो ये शांतनु प्रताप जी कह रहे थे, बहुत अच्छा आइडिया, सबको मिलाएं, हम भी मिलाना चाहते हैं, बट लोगों में कुछ इनर्शिया होता है, कुछ बिल्कुल। होता है कि हमारा क्या होगा। हाँ, हमारे में ऐसा नहीं है, हम तो सबको साथ लेके चलने को तैयार हैं, सबसे अपना शेयर करना चाहते हैं, और सबसे जो हमारी वेबसाइट खुली हुई है, जिसको जो रिजल्ट चाहिए देना चाहिए। जैसे मैं नंदा देवी गया था, मैंने पीएचडी नहीं की, वो जो हमने 3 रिपोर्ट लिखी थी साइंटिफिक, उसमें 5 बच्चे आए थे मेरे पास कि सर आपका इतना अच्छा काम है, करें, सबने पीएचडी कर ली। ठीक है नहीं? तो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो हम ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं पोल्यूशन पे,
रास्ते के जितने IITs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने स्टूडेंट्स को 1-1, 2-2 दिन के लिए भेजें, डाटा कलेक्ट करें, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की थीसिस करें, हैं, और PhD कर लें। हमें कुछ नहीं चाहिए उससे। मेरा भी यही उद्देश्य है, बच्चों को ले जाऊं तो कुछ तो उसमें से वो अपने करियर करें। जी, और ये जो हमारे वैदिक टाइम में ऋषि मुनियों की यात्राएं चलती थी नदी के किनारे, वो यही लोगों को ज्ञान बांटना, लोगों से मेल मिलाप करना, भिक्षा मांग के खा लेना, और वो बहुत अच्छा था, है नहीं? उसी से हमारा ये जो वासुदेव कुटुंबकम और वो वाला था ना, वो सब वहीं से निकला है। और जब मैं पुणे यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंटल साइंस का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हमारे को एक बहुत अच्छी बात बताई हमारे प्रोफेसर ने कि जो वैदिक टाइम में हमारा सिस्टम था, अब तो कमर्शियलाइज हो गया है सब कुछ, अब तो ये आ गया है ना हमारा अमेज़न है, पैकेजिंग इतनी ज्यादा आने लगी है, वेस्ट इतना बढ़ गया है। जब मैंने एमटेक की थी उस समय इंडिया में 3 kg का से कम का था पर हाउस होल्ड, और अमेरिका में था 10 kg पर हेड गार्बेज। अब हमारा भी बढ़ने लग गया है। बट वैदिक टाइम में क्या था कि पानी अगर आपकी रसोई से निकलेगा तो पौंड में जाएगा, पौंड से सिंचाई करेगा, है कोई भी चीज है। अगर आपकी चादर है खराब होगी तो उसके छोटे पीस कर दिए जाएंगे, फिर उसका पोछा बन जाएगा, फिर उसका रुमाल बन जाएगा, जब तक वो बिल्कुल ही राइट ऑफ नहीं हो जाएगा उसका इस्तेमाल होता था। हमें वही रिसाइकलिंग वाला प्रोसीजर अगर चालू करें, वो सब करें, और ये जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज ये मल्टीनेशनल्स हैं, इतना टीवी है, बच्चे जागते ही वही देखते हैं तो उनको वही चाहिए। तो है तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम मानसी जी जैसे आप कर रहे हैं, बट आई थिंक इफ यू यूनाइट वी कैन डू इट। आई थिंक आई हैव स्पोकन टू मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनोद जी। मैं एक लास्ट मैसेज मनोज से लेना चाहूंगी माइक, क्योंकि हम गर्ल्स को लेके जाएंगे, तो मैं चाहूंगी आप हम लोग को बताएं कि हमको क्या प्रिपेयरनेस करनी चाहिए और किस तरह बेसिकली हम प्लास्टिक के लिए ऑफ कोर्स हम आपको रीच आउट करेंगे पूरी टीम को कि हमको कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बट अदर देन दैट बिकॉज ये सेशन एक्सपेडिशन पे था, हमको क्या प्रिपेयरनेस रखनी चाहिए? मेंटल प्रिपेयरनेस तो यस, बट अदरवाइज। आप म्यूट पे हैं माइक। 2-3 तरह की प्रिपरेशन है। एक तो फिजिकल फिटनेस की प्रिपरेशन है। आपकी यात्रा अगर पूरे समय आप फिजिकली लास्ट नहीं करोगे तो आपका मिशन जो है वो खतरे में होता है। आधे में आना, एक्चुअली मिलिट्री वाले हम लोग तो बहुत इसको मानते हैं कि आधे में मिशन नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, एक तो आपको फिजिकल फिटनेस की प्रिपरेशन चाहिए, दूसरी आपको रिडंडेंसी चाहिए। जो भी लोग एक काम कर रहे हैं उसके साथ एक असिस्टेंट नंबर 2 नंबर 3 होने चाहिए, तो कि अगर एक बंदे को जाना पड़े तो दूसरा बंदा उसके साथ हो। तीसरा आपके पास इक्विपमेंट जो है, क्योंकि एक स्पीड से यात्रा चलती है, एक गति से चलती है, तो समय नहीं होता कि फॉल बैक करते हुए अपने सामान को लिया जाए। तो चेकलिस्टिंग जो है हम आपको भेज देंगे, हमने जो चेकलिस्टिंग करी थी वो चेकलिस्टिंग आप करके पहले से ही सामान लेके चलें, ताकि किसी भी टाइम पे आपको मुड़ के ना देखना पड़े चीजों के बारे में। और एकोमोडेशन जो है, इसके लिए जो टीम है, लॉजिस्टिक्स की जो टीम है, उसका जो लॉजिस्टिक्स का भार है वो संभाले, ना कि आपकी टीम जो टेक्निकल काम कर रही है और दिन रात नदी के अंदर बाहर ये वो, उसका ही बहुत काम होता है। तो लॉजिस्टिक्स की चिंता में रहेंगे तो आपका काम सफर करेगा। तो लॉजिस्टिक्स को आप किसी एक बंदे के हाथ में छोड़ें, जो कि आपकी लॉजिस्टिक्स दिन रात की खाना पीना, ये वो, रहने की जगह शाम की, उसकी चिंता जो टेक्निकल टीम है उसको ना करनी पड़े। तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। क्लोथिंग वगैरह डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गोइंग, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट वेयर यू गोइंग, आपकी दोनों ही टीम को अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मिलेगी, मिक्स ना करें उस ट्रांसपोर्टेशन को। बिल्कुल। और कुछ एक खानसामा आप साथ रखें और थोड़ा बहुत राशन साथ रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने आज लेट तक टेस्ट किया तो जगह नहीं पहुंच पाते हैं कभी कभी, तो कैंपिंग भी करनी पड़ती है हम लोग। तो ऑल्दो गंगा नदी के किनारे पे आपको हर जगह पे आश्रम और ये मंदिर मिल जाते हैं। हम तो बहुत ही रात, हम जल भट्ट साहब, हम सब पीपल के नीचे भी सोए हैं, तो उसका एक अलग आनंद है। इंटरैक्ट करते रहिए, बहुत सारी नॉलेज लोगों के उसमें है। रामचरितमानस गा गा के ही आपको गंगा के बारे में इतना ज्ञान देंगे लोग कि बहुत यूनिक लगता है कि ये सब जानते हैं, और ये हम सबसे ज्यादा जानते हैं बिकॉज नदी के पास रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। वो एक लोकल नॉलेज जो है वो कोई मिस ना करे, वो बहुत बड़ी संपत्ति है आप जो व्हेन यू विल ब्रिंग बैक एज पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस।
बाकी अगर आप मेरे को लोकेशन वाइज बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक आप कब हैं, तो हम आपको हमारा जितना भी हमारे पास हम आपको ले चलेंगे। इंफॉर्मेशन बेस है। जी जी, नहीं हमारी टीम है, देखो हमारे सेल्फलेसली कम से कम 200 लोग हमारे साथ हैं जो इस पूरी एरिया को अच्छे से जानते हैं। हमारा तो जो खाना संभालने वाला था वो भी एवरेस्टर था, वो एवरेस्ट संभाला था। विष्णु सेमवाल अभी है इस पे, राइट डाउन देयर। विष्णु सेमवाल ने खुद एवरेस्ट चढ़ा हुआ है और हिंदुस्तान की सारी पहाड़ियां चढ़ी हुई। तो जैसे कि जनरल भट्ट ने बोला, हम लोग तो एक्सपीडिशन और फिजिकल जो डिफिकल्टी है उसको मजे लेते लेते चले गए, बिकॉज इट वॉज ग्रेट फन फॉर अस। बट आप मुझे स्ट्रेचेस बताइए मानसी जी, आपको हर तरह की मदद हमारी तरफ से आएगी। और हम रास्ते में बहुत लोगों को जानते हैं, बहुत। हमने तो अभी 2-3 बार हम जा चुके हैं उस रास्ते। एक बार यात्रा की थी, फिर उसके बाद साइक्लोथॉन किया था, उसके बीच में एक एक्सपीडिशन सिर्फ पोल्यूशन मैपिंग का चला था। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोच चुकी थी और हमारी यात्रा के बाद उन्होंने दोबारा काम करना शुरू किया। तो जोत से जो जलती रहती है, आगे चलते रहते हैं। आपको हमारे तरफ से 150% मदद मिलेगी, जो भी आपको हम कर पाएंगे। मानसी हम जस्ट एक पॉइंट जस्ट एक पॉइंट हमारी बात। हाँ, थैंक यू सो मच सर। तो बस वही समराइज करने के लिए कि जो हमारा रिसर्च वाला कंपोनेंट है, ऑफ कोर्स उसमें करीब 11 से 13-14 लोकेशंस होंगी। वो तो फाइनल मानसी और हम लोग करेंगे। एक्सपो सिंपोजियम की 3 लोकेशन मैंने बताई दी है, बट यू नो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपका सपोर्ट हम लोग के साथ इन 11-14 लोकेशंस पे रहेगा। एंड विल बी हैप्पी टू पार्टनर जब भी जो भी आप जिस भी चीज पैटर्न से कंफर्टेबल हो। तो आई एम श्योर आई स्पीक फॉर मानसी मैम एज वेल, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। हम सबको नदी के बारे में करना चाहिए, जहां जब तक नदी का काम रहेगा हम सब जुड़ के रहने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स आज जी। Is anyone saying something? मैं 1 मिनट बोलना चाह रहा था। जी राहुल बोलिए। हाँ, जो विनोद सर ने बताया कि कम से कम लोग मदद करने के लिए तैयार होते हैं, तो मेरा यही कहना है कि जो भी जाएंगे, जो यूथ है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो मिनिमम उनके पास साधन है, संसाधन है, पैसे हैं, तो भी उसको कम से कम खर्च करें। मतलब न्यूनतम में हम कैसे अपने काम को कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को। तो वो एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। हमें वेदितम की ओर से 5,000 रुपया का 15 दिन का 14 दिन का हमारे पास था। मुझे लगा था कि ये पैसे बहुत कम है और खर्च करने होंगे, तो लेकिन सिद्धार्थ जी भी हमसे पूछते थे कि पैसे की जरूरत होगी तो और हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन हमारे 4,000 रुपये ही खर्च हुए प्रति व्यक्ति। और मुझे लगता है कि अगर हम उसे थोड़ा और मिनिमाइज भी कर सकते थे, वो 2 और 3,000 रुपया 3,000 भी कर सकते, तो वो एक जिंदगी जीने का एक तरीका, एक सलीका आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये भी हमारे वेदों में ही लिखा है, जब हम नदी को जानने निकलते हैं तो हम एक्चुअली अपने आप को जानने निकलते हैं। और ये शायद एक अच्छा मौका है कि अब मैं इस सेशन को कंप्लीट भी करूं, क्योंकि आज हम बहुत अपने समय से काफी आगे समय निकाल चुके हैं इस सेशन के लिए। बट क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रहा था, हमने उसको पानी के जैसे अविरलता से बहने दिया। और क्योंकि हमारे इंटेंट में एक निर्मलता भी है, तो इसलिए ये कॉन्वर्सेशन में बहुत रिचनेस थी। So before I say my vote of thanks, let me just announce quickly for the next week's session, because we have some interesting session coming up. Next Friday Waters is on book reading, and we are going to talk about globalization of water governance in South Asia, and 2 of the editors, Dr. Chanda Gurung from Nepal, and of course all of us know Professor Vishal Narayan from our own very W4W group, are going to come and discuss the water reading, or book reading as we call it. This is on 10th of March. And 15th of March, we are going live on a physical site at Lucknow at Dr. APJ Kalam University, a technical university, and where we are going to discuss riverscapes. So we have a series on riverscape, which is hosted by ICOMOS India. And Nishant Upadhyay is our human host, I must say, and then institution host. So we are going to do a hybrid session on 15th of March. Again, all our timings are 5 to 6 p.m. So with this, let me just say a vote of thanks to Manoj or Mike, as we know, and we have come to know each other from actually Matri Sadan. So I should also say our pranam to Guruji, Swami Shivanand ji, where we came to know each other. And
Again, as Mike rightly mentioned, along the Ganga, you will come across many ashrams, and Matri Sadan has been one of the places which connected me and Mike together to really look at the river as a cause. So thanks, Mike, for coming here and also sharing your entire network and people who can share their wisdom with us. And thank you, Bageshwar and Rahul, for sharing your detailed experience of being an expeditioner and telling us कि आप लोग ने क्या सीखा, क्या देखा, कैसे लोगों से बात किया. I hope those who are listening to us are also excited about taking a lot of walks along the water bodies. I have done myself more than 50 walks, but these are very little walks around the lake, and I've never done a river walk. So I am really looking forward to doing a river walk. Thank you, all of you, and especially all the participants who have been really supporting and encouraging us to conduct the W4W sessions. Because without you, we would not have managed to conduct more than 150 sessions so far. So we are really inching towards 200 sessions, and we are very, very excited and grateful to all of you for supporting us. Thank you so much. Please take care of yourself, and God bless all of you.